میں برونٹ کر کرو پروگرام پکناو برونٹ ٹھیک ہے مگر تھوڑا ڈسپلن اس کرو جلدی کرنے کی کوشش یتک بہت سن قائد جناب شیخ اشفاق جبار صاحب اس پرش تہ بڑ زور شور سان اتھے پٲٹھۍ لٔگۍ جذبس منٛز یِم لاسٹ ایئر سُہ یوٗتھ یہِ أسۍ یِم لڑکہٕ کر لاسٹ ایئر والنٹیرو ٹی شٲٹ چھِ رٔٹمٕژ تِم والنٹیرس منٛز یا گژھِ سۄ پارکہِ منٛز گاندربل تمبرن نیرن تہٕ سٹیڈیم واتن سُہ کرو أسۍ منڈے دۄہ انشاءاللہ تہِ چھِ رٔٹمٕتۍ حظ باقٕے یہِ دۄہ چھُ اَسہِ اکھ امتحان گاندربل یُس تہِ یونایٹڈ موٗمینٹس منٛز جُڑِتھ چھِ تِمن خٲطرٕ اشفاق صٲبُن سپورٹ چھُ یوٗتاہ ہمیشہِ بہٕ چھُس ایز اے یوٗتھ پریزیڈنٹ تۄہہِ وعدٕ دِوان کٕہٕنۍ گژھِ نہٕ ناراض انشاءاللہ کمنگ ٹایمس منٛز یُتھُے سٲنۍ پارٹی کُنہِ مُقامس اعجاز علی نبی ماگرے شریف الطاف صاحب خانیات سوشل ورک واریاہ زبر ولی غلام منظور صاحب بیچ سوشل ورک تہ کافی زیادہ کر نذیر احمد خان صاحب یم ڈپٹی سرپرست جوائن کر شریف خان صاحب اور طارق احمد خان نبی بابا صاحب بابا وائل پہ بیچ حبیب اللہ لون صاحب اکھال پہ معراج الدین راتھر صاحب تھاو اس کنٹینیو تو گۄڈٕ کرناو أسۍ یہِ جویننگ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ فرد حمید بٹ صٲب ریپورہ پٮ۪ٹھ محمد رمضان بٹ تلملا پٮ۪ٹھ امین خان صٲب گُٹلی باغ پٮ۪ٹھ اعجاز صاحب نے سربراہی چیف سپوکس پرسن جموں کشمیر اعجاز احمد خان بیمنا آل جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ جس کشمیر کو خون سے سینچا جس کشمیر کو خون سے سینچا نعرہ رسالت جیت ہماری جیت ہماری جیت ہماری دشمن ہماری جیت ہماری آج یہ اشفاق جبار کے سامنے آیا مگر ایک بات ہے جو پچھلے 70 سال میں یہاں نہیں بنا وہ خالی ایک سال میں شیخ اشفاق جبار نے کر کے دکھایا. ہم نے 2008 میں ایک بات کہی تھی اسی جگہ پہ کہ یہ ٹرین نکلی ہے گاندربل سے اس کو اپنے منزل پہ پہنچنا ہے اس میں کئی ساتھی چڑھیں گے بھی کہیں اتر بھی جائیں گے راستے میں یہ کرنے آیا کہ یہاں ایک نیا خواب گاندربل کو ملا ہے شیخ اشفاق جبار صاحب جو کام کسی نے کیا آج تک کسی نے نہیں کیا وہ اس نے ایک سال میں کیا آج تک میں نے دیا بڑے بکروال لوگوں کو ووٹ آج تک میں نے تقریباً 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچ کیا اس ٹائم ہم کو جوانی تھی روز جا رہے ہیں ادھر آج میں ضرور ڈالوں گا اشفاق صاحب کو پہلے ڈالا ایم سی کو مگر اس نے کچھ نہیں دیا تباہی کے سوا اس نے کچھ نہیں دیا یہاں دیکھو اس نے 2007 میں 219 لڑکوں کو آرڈر دیا آج سے پہلے 1 سال میں نکالا وہ کیا کریں گے وہ مر جائیں گے بیچارے ہاں یہ کام کریں گے انشاءاللہ آج تک ہم کو سکیم کچھ نہیں ملا خالی اشفاق صاحب کی وہ مہربانی ہے اس نے ایک آئی وے کیس ہم کو دیا باقی کسی نے ہم کو کچھ نہیں دیا فی الحال تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا فوکس سینٹرل کشمیر ہے سینٹرل کشمیر میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ شاید اتاریں گے اور اس کا ہم 17 تاریخ جو شہید ملت شیخ عبدالجبار صاحب کی برسی ہے 34ویں اس پہ ہم اعلان کریں گے کینڈیڈیٹ کا بھی اور جو بھی آگے کے معاملات ہوں گے اس کا بھی کریں گے اور جو باقی جہاں ہمارے ساتھی ہے
वहाँ हम सपोर्ट करेंगे अपने पार्टी जो भी हमारे उस वक्त लगेगा कि हमारे जो हमें अच्छा लगेगा, और चाहे वो कुपवाड़ा हो, ओडी हो, वहाँ पे भी हमारे लोग हैं, वहाँ हम सपोर्ट करें। चाहे अनंतनाग में हमारे लोग हैं, वहाँ भी हम देखेंगे किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सेंट्रल कश्मीर हमारा फोकस है, क्योंकि यहाँ गांदरबल है। हम चाहते हैं कि गांदरबल, यहाँ सेंट्रल कश्मीर से हमारा कैंडिडेट आ जाए, जो यहाँ हमारा बुनियादी जो मकसद है, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर की बात होनी चाहिए, आज तक पार्लियामेंट में वो बात नहीं हुई। फारूक साहब, हमने 10 साल उनको यहाँ से जिताया, लेकिन जो उन्होंने 5 साल में सिर्फ 11 सवाल पूछे हैं पार्लियामेंट में, और एक भी कोई MP लेड कहीं उन्होंने बात नहीं की। और छोड़िए वो भी अब बात नहीं है, लेकिन हम ये बात जो कल उमर अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे कि हमने 3000 लोगों को हमारे यहाँ शहीद हो गए पार्टी के, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को ये मैं पूछना चाहता हूँ, या उनकी जमात को, क्या उनको नहीं लगता जो 1-2 लाख लोग यहाँ कब्रू में हैं, उसकी जिम्मेवार कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस है? क्या 87 को वो भूल गए जब मोहम्मद यूसुफ को उन्होंने सलाउद्दीन बनाया? ऐसे हज़ारों लोग, जो यासीन मलिक साहब इस वक्त जेल खानों की जीनत है, क्या उसके लिए जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? जो रिगिंग उन्होंने 87 में की, जो एक बुनियाद थी यहाँ, जो ये इंसर्जेंसी यहाँ शुरू हुई। और खासूसन मैं उमर साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि ये 3000 लोग, तब आप कहाँ थे? तब आप तो कोई मुलाजमत शायद कर रहे थे, या आपके वालिद लंदन में बैठ के यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम को छोड़ के गए, और उनको तो आपने, और वो क्या यही वजह नहीं है आपने टाइम से यू टर्न्स लिए? कभी फारूक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा पाकिस्तान पे बमबारी कर दो, कभी आपने कहा आज नौजवान पत्थर से जिहाद कर रहा है, तो कहीं आपने आप अपने आप को ये नहीं समझते हैं कि जो ये आज हमारे लोग जो आंखों की बीनाइयों से महरूम हो गए, जो शहीद हो गए या जेलों में है, कहीं आप उसके जिम्मेवार हो? क्योंकि आपने जिस तरीके से टाइम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बयानात बदले, या फारूक साहब ने बदले, कितने देर आप बेवकूफ़ बनाओगे इस कौम को? या 370 पे जब आपने टाइम टू टाइम यू टर्न लिए, आप अवामी अदालत को छोड़ के आप जुडिशरी में चले गए फैसला लेने के लिए, वो तो कॉमन सेंस ही था, और वो था कि वहाँ से फैसला हमारे खिलाफ आएगा। कहीं आपने कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया था दिल्ली के साथ? और वही वजह थी कि आपने वो जिस तरीके से, क्योंकि अदालत का एक बार जब उस पर मोहर लग गई, तो अब हम कौन सी अदालत में आगे हम और जा सकते हैं? जैसे किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, 14 महीने वो सड़कों पे पुरअमन तौर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, 900 किसान मारे गए। क्या आप ये नहीं समझते थे, जब आपको बताया भी गया था, मैंने भी कहा था कि आप एक पुरअमन तरीके से एक तहरीक चलाएंगे, आपने बिल्कुल उसे मना कर दिया। और वही वजह रही कि जो इस वक्त जो मालात, और जो आप इंडिया अलायंस की बात जब आप करते हैं, फारूक साहब जब वहाँ तकरीर करते हैं, या बाकी पार्टीज़ के लोग, क्या वहाँ जम्मू कश्मीर का एजेंडा इंडिया अलायंस के एजेंडे पे है? क्या 370 का मुद्दा, वो 370 वो हमें वापस दे सकते हैं? 35 से वो हमें वापस दे सकते हैं? तो अगर है तो हम भी उसका हिस्सा बनना चाहेंगे, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, हम भी उसके तहरीक में, अगर जो जम्मू कश्मीर के जो मामलात है उसके साथ। लेकिन जहाँ तक आज तक देखा गया है, इंडिया अलायंस अगर ये इस वक्त बताए कि अगर हम बरसत हमारी जो इंडिया अलायंस आई, तो हम 370 जम्मू कश्मीर को वापस देंगे, 35 से वापस देंगे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बरक्स हम तो इस चीज़ का वेलकम करते हैं जो अमित शाह जी ने या डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब सपा को हम सोच रहे हैं हटाने के लिए। कम से कम एक पॉजिटिव साइन तो आ रहा है, जो कश्मीर जितने लोग हमारे यहाँ एक उनको पावर्स मिले हैं, फौज की जो साथी हजरात है, मज़हब को सियासत को मत मिलाइए खुदा के लिए, क्योंकि इससे लोगों के जो डेवलपमेंट रुक जाती है, और जो पढ़े लिखे को नौजवान है उनके साथ इस्तेसाल हो जाता है। जो भी आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट उतारे, वो रिलीजियस की, ये गुजर को कश्मीरी के साथ लड़ाना चाहते हैं, शिया को सन्नी के साथ लड़ाना चाहते हैं। जिस तरीके से ये अपने कैंडिडेट्स को रिलीजियस बुनियादों पे उतारना चाहते हैं, और घुसपैठ जिसको हम कहते हैं इन्वेडर, एक इलाके का उठा के हम वेलकम करते गांदरबल वाले, हम इसमें इतना खुश होते अगर मियाँ अल्ताफ साहब को वो सेंटर कश्मीर से उतारते, क्योंकि मियाँ अल्ताफ साहब तो हमारे इस सरजमीन का हिस्सा है जो गांदरबल के
50 साल तो उसके खानदान ने यहाँ पे कंगन के लोगों ने उनको वोट दिया, और जब ये MP की बारी आई तो क्यों नहीं मियां अल्ताफ साहब को आपने सेंट्रल कश्मीर से कैंडिडेट उतारा? क्यों नहीं आप रूहुल्लाह साहब को आज नॉर्थ कश्मीर से, जबकि बडगाम नॉर्थ कश्मीर का हिस्सा है, बीरवा उसका हिस्सा, आपने क्यों नहीं रूहुल्लाह साहब को उधर, आपने क्यों उसको सेंट्रल कश्मीर को तरजीह दी? यही आप चाहते हैं कि मजहबी बुनियादों पे शिया कम्युनिटी, शिया भाइयों से मैं वोट लूं और यहाँ आपस में ये लड़े, आपस में एक कम्युनिटी बेसिस पे, जो हरगिज़ हम इजाज़त दें। हम सब एक है, हमें मैं लोगों से भी, नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूँ, हमें मेरिट्स पे देखना चाहिए, और जो सही परफॉर्मेंस जिसकी छवि साफ हो, जो लोग अच्छे हो, उनको आप अपना वोट दीजिए, ना कि किसी स्पेशल से इसके बुनियाद पर। देखिए, उसमें हमारे लोग बैठेंगे, हमारी वर्किंग कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, कल शायद हमने मीटिंग रखी है, उसकी हम वहाँ बात करेंगे, और जो भी हमारा आउटकम आएगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। हो सकता है, और हो सकता है आप उन लोगों को देखेंगे जो आज तक आपने किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं देखे होंगे, या मेन स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखे होंगे।